تعظیم یاسین آپ کی خدمت حاضر خدمت ہے. سامعین کرام، یہ پروگرام آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5 بجے سے 6 بجے سنتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ناظرین ہمیں پوری دنیا میں دیکھتے بھی ہیں. اور یہ پروگرام ہمارا حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا ہے اور روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور آج کا موضوع ہمارا جس طرح آپ کو معلوم بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں، یوم تکبیر کے حوالے سے ہے. اور پاکستان میں یوم تکبیر جو آج منایا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً پاکستان کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا. اور آج اگر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا ہے تو اسی دن کی جو حوالے سے جو اس دن کی نسبت ہے پاکستان کے ساتھ، اس بڑی اہمیت ہے. اور یہ ایک ایٹمی قوت کے طور پہ جب پاکستان سامنے آیا تو اس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوا. تو یہ آج کے دن کے حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب عارف بہار، جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور پاک بھارت تعلقات کے اوپر اس کے گہری نظر رکھتے ہیں، پاک بھارت تعلقات کے ماہر ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور ہمارے پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ علامہ جواد جعفری صاحب بھی شریک ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بہار صاحب کی طرف چلیں گے اور عارف بہار صاحب سے بات کریں گے. بہار صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہار صاحب ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. جی ببار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلکہ بات کرنا چاہوں گا کہ یوم تکبیر کے حوالے سے آپ آج ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی اس دن کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئی، جلسے جلوس نکالے گئے، اس کے ساتھ ساتھ کیک کاٹنے کی تقاریب بھی ہوئی. یقیناً ایک خوشی کا موقع تھا اور خوشی کرنی بھی چاہیے کہ چونکہ اس دن جو ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا. اور اس دن نے اور ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان کی جو حیثیت ہے دنیا کے اندر بہت اہمیت اختیار کر گئی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حالات میں، جبکہ پاک بھارت جنگ بھی ہوئی ہے اور اس میں دنیا نے ظاہر ہے جب ایٹمی قوت نہ ہوتے تو شاید ہمیں کوئی نہ پوچھتا، لیکن ایٹمی قوت تھے تو ظاہر ہے دنیا کی توجہ ہماری طرف ہو گئی. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ بہت تاریخی دن ہے جی. ایک تو قیام پاکستان کا دن ہے، قیام پاکستان کا جو حوالہ ہے وہ ہے، اور پھر بقائے پاکستان کے حوالے سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ جو بقائے پاکستان کا ایک مرحلہ مارکا اور چیلنج درپیش تھا پاکستان کی ریاست کو، یہاں کے عوام کو، اس مملکت کو، وہ اس دن اس چیلنج پہ یہ ریاست پورا اتری. کیونکہ اس کے بعد جب یہ پاکستان کی جو قیادت تھی، اس نے جب ایٹمی طاقت کے حصول کا فیصلہ کیا تو خیال یہی تھا کہ بھارت آبادی، رقبے اور وسائل کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، اور ان کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، ایک اینیموسٹی کا ماحول ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. کیونکہ بھارت کے عزائم وہ بہت آگے کے عزائم تھے، وہ بہت معاندانہ تھے پاکستان کے حوالے سے. بادل ناخواستہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور اب اس زخم کو مندمل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراش رہے تھے، مختلف انداز اپنا رہے تھے. تو یہ ایک پاکستان میں ایک احساس تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو موقع ملتے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور جس کا عملی مظاہرہ پھر 1971 میں ہوا کہ جب بھارت کو موقع ملا پاکستان پر وار کرنے کا تو اس نے وار کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. اور پاکستان کے اندر جو ایک موجود تھا ایک احساس کہ طاقت کا توازن نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کے لیے پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے ہر دور میں ایک ان خطوط پر سوچنا شروع کیا تھا کہ کیوں نہ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا جائے، تاکہ طاقت کا جو توازن ہے، جو عدم توازن کے نتیجے میں جو قائم ہوگا، اب وہ توازن قائم کیا جائے اور برقرار رکھا جائے. اور یہ جو پاکستان کا جو ایٹمی صلاحیت کے حصول کا سفر تھا، یہ اسی احساس کا نتیجہ تھا
कि हमने इस खिते में ताकत का तवाज़ुन पैदा करना है। ये जारहियत के लिहाज से नहीं था, ये एटम बम फेंकने के लिहाज से नहीं था, ये इंसानियत को हिरोशिमा और नागासाकी के अंजाम से दो चार करने के लिए नहीं था। हकीकत में इसका जो सारा मकसद और मुद्दा था वो अपना तहफ़्फ़ुज़ था, अपनी खुद मुख्तारी का, अपने जोग्राफिये का, अपने इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़ था, एक ऐसे दुश्मन के मुकाबले में कि जो हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ताक में लगा रहता है। तो 1971 का जो सान्या हुआ उसमें फिर पाकिस्तान की क़यादत ने हतमी ये फैसला किया कि अब हमें इस जानिब पेशरफ्त करनी चाहिए और अमली पेशरफ्त करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान ने एटमी ताकत के हसूल का एक रास्ता इख्तियार किया। यानी जो मुल्क एक दौर में जब कायम हुआ तो वो कहा जाता है कि इसकी जो दफ्तरी फाइलें थी उनको जोड़ने के लिए कांटा इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ जो झाड़ियों का, तो एक मुहावरतन या अलामतन या अमली तौर पर भी ये कैफियत थी। यानी पाकिस्तान एक कसम पुरसी और बेबसी के कैफियत में था, और वही रियासत फिर चंद अशरों के बाद जब अज़्म किया इस बात का तो वो एक एटमी ताकत हासिल करने में कामयाब हुई, जिसको फिर हम ये कहते हैं कि वो किताबें भी इस पर लिखी गई हैं कि कांटे से कहूटा तक का सफर पाकिस्तान ने तय किया। ये जिंदा कौमों की अलामत होती है, ये कौमों के अंदर एक पिन्हा जो उनकी ताकत होती है, जो पोटेंशियल होता है, ये उसकी अलामत होती है कि आप किसी वाक़े से, नाखुशगवार वाक़े से सबक हासिल करें और फिर दोबारा उस वाक़े से बचने की कोशिश करें। और पाकिस्तान की तरफ से जो ये एटमी ताकत के हसूल का सफर था या फैसला था या अज़्म था, ये इसी सबक का नतीजा था कि जो 1971 में हुआ, और पाकिस्तान ने दोबारा ऐसे किसी वाक़े से, किसी सानहे से बचने के लिए खुद को कील कांटे से लेस करने का जो एक अमल है वो शुरू किया। और यही वो सफर था कि जिसके लिए पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी, मेहनत की, और उन्होंने पाकिस्तान के साइंसदानों ने, बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो एक सिंबॉलिक हैसियत रखते हैं इस एटमी प्रोग्राम में, उन्होंने अपनी सारी रियासत की, अपनी जिंदगी तज दी, ऐशो इज्जत की जिंदगी छोड़कर वो बाहर से यहाँ आए। फिर हमारे बाकी जो उनकी टीम थी, जो साइंसदान थे, जिन हुक्मरानों ने, जिन फैसला साजों ने वसाइल फराहम किए इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, वो सब लोग खराज तहसीन के, खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए बहुत से खौफ और खतरात से आज़ाद कर दिया। और फिर आखिर यही सफर था कि पाकिस्तान ये एटमी ताकत हासिल करने में कामयाब हुआ, जिसका इजहार फिर चावी के पहाड़ों में किया गया, और पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि भारत का ही एक नाकस हिकमत अमली का नतीजा था कि पाकिस्तान इस ताकत के इजहार पर मजबूर हुआ। क्योंकि जो वाजपेयी के दौर में भारत ने खुद को एलानिया एटमी ताकत बनाने के लिए 3 एटमी धमाके किए और पोखरान के पहाड़ों में, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहा। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त एक एटमी ताकत बन चुका था, और बहुत से जो बैनुल अक़वामी तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, वो लिख रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक एटमी ताकत है, एटमी सलाहियत है। बाहर से भी जो आने वाले लोग थे, मुख्तलिफ जो हमारे मेहरबान आलमी दोस्त थे, वो भी आते थे, तो वो भी हमेशा से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन पर एक दबाव की कैफियत रखना चाहते थे, दबाव का सा माहौल रखना चाहते थे। जैसे साबिक सदर गुलाम इसाक खान और एक बाहर के एक आला सफारती एहलकार के दरमियान वो मुकालमा आपको याद ही होगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप के दालान में, बैक यार्ड में एक चीज ऐसी है जो बत्तख की तरह बोलती है, बत्तख की तरह डराती है और बत्तख की तरह पर फैलाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बत्तख नहीं है। तो सदर गुलाम इसाक खान ने कहा कि जब मैं इस मुल्क का सदर हूँ और अगर मैं ये कहता हूँ कि वो बत्तख नहीं है, तो फिर आपको यकीन करना चाहिए कि वो बत्तख नहीं है। तो मतलब ये है कि इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से दबाव का मुकाबला किया, और फिर पहले रोज से ही एक जो लाबी है, पाकिस्तान मुखालिफ लाबी है, जिसके डांडे बैरूनी दुनिया तक मिलते हैं, भारत से शुरू होती हैं और उसके रिश्ते फिर काफी बाहर तक चले जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले ही इस बम का नाम जो है इस्लामी बम का नाम इसको दिया, हालांकि दुनिया में उस वक्त तक बहुत सी ऐसी। अब भाषा में इसे जिक्र करता चलूं कि शायद इसी की तरफ आप जा रहे हैं कि जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए, तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने की
के लिए कहा कि वो भी इसका एटमी धमाके करेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर एक प्रेशर हो गया। दुनिया के अंदर से पैगाम आने लगे कि पाकिस्तान को बड़ी ऑफरें की गई कि आप धमाके ना करें। बहुत सारी ऑफरें मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से दी गई और पूरी दुनिया से एक प्रेशर डेवलप किया गया कि पाकिस्तान धमाके ना करे। तो क्या आप समझ रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, दुनिया की बात ना मान के अपने मौकफ के ऊपर डटे रहने का? जी बिल्कुल, ये रोज अव्वल से ही जो ही दुनिया को ये भनक पड़ी थी कि पाकिस्तान एटमी ताकत के हसूल की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त से ही टेबल पर ये तरगीब की ऑफर भी मौजूद थी और एक दबाव की भी, यानी गाजर और छड़ी दोनों हमेशा से उनके सामने रखी थी कि पाकिस्तान को हमेशा से ये ऑफर की जाती थी कि आप यहाँ कैप कर दें, इसको बंद कर दें, फ्रीज कर दें अपने प्रोग्राम को और माशी और माली इमदाद ले लें आप। कभी थ्रेट्स भी देते थे, बाकायदा आकर सफारतकार देते थे, हमले करने की भी धमकियां देते थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ, यहाँ जो है पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी रियासत का मजमूई पोटेंशियल जाहिर होता है कि इस्तकामत के साथ वो अपनी इस राह पर, अपनी इस अज़्म की तकमील के लिए वो अपना सफर उन्होंने जारी रखा और उसी का इजहार फिर ये पाकिस्तान ने फिर चावी के पहाड़ों में किया। एटमी ताकत के जो इजहार का एक मौका था और उस वक्त भी ये ऑफर मौजूद थी कि आप इतने पैसे लें और ये धमाका ना करें, और पाकिस्तान की रियासत को, मुमलिकत को इस फैसले से बाज रखने के लिए वो दबाव डाल रहे थे कि भारत ने अब कर लिया है तो अब आप ना करें, तो इसके बदले आप अपनी जो कुछ मुआशी पैकेज ले लें, इमदाद ले लें। लेकिन पाकिस्तान में बहसकीत रियासत इस फैसले को ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने अपनी इस ताकत का, जिसके हसूल के लिए बरसों मेहनत की थी, बरसों रियाजत की थी, बरसों कुर्बानियां दी थी, उस ताकत के हसूल का ऐलान करके और वो दुनिया की जो 7वीं एटमी ताकत और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत का एजाज हासिल किया। और आज वक्त ने ये साबित किया कि पाकिस्तान की क़यादत का ये फैसला 100% से भी ज्यादा दुरुस्त था कि पाकिस्तान फिर अपने दिफा के जो रिवायती जो झंझट है उससे बेनियाज हो गया, आजाद हो गया और एक पोटेंशियल पैदा हो गया। इम्कानी तौर पर ये पोटेंशियल यहाँ पैदा हो गया कि 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं और इससे न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों में एक एतमाद बढ़ गया कि अब भारत उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता, भारत उन पर कोई 71 मुसल्लत नहीं कर सकता, भारत अब उनके खिलाफ साजिशें नहीं कर सकता, किसी मुक्ति बाहिनी को लॉन्च नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानियों में एक जो एतमाद होता है, ये किसी कौम की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके अंदर जो खुद एतमादी होती है, जो खुदा एतमादी होती है, यही कौमों को जिंदा रखने का जज्बा होता है। और इस एटमी ताकत ने पाकिस्तान के लोगों के अंदर वो खुद एतमादी पैदा की कि उन्हें दुश्मन का खौफ जो है उनके सरों से निकाल दिया। और हालिया जो जंग है इसमें भी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग मुतमईन और मसरूर इसलिए थे कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये कार्ड मौजूद था कि खुदा न खास्ता अगर हम ये हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो जंग है, जो कश्मकश है, कहीं अदम तवाज़ुन का शिकार होने लगे तो फिर हमारे पास अपनी बका का रास्ता जो है और कार्ड जो है, ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद है। फिर इसी तरह ये जो एटमी ताकत का हसूल था इसने एक बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक पोटेंशियल पैदा किया। अब आप देखें कि अगर जो ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक खास सतह से ऊपर जाती है तो दुनिया में खतरे के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं कि 2 जो आर्च राइवल्स हैं साउथ एशिया के और 2 जो एटमी ताकतें हैं वो आमने सामने आ गई, उनमें कशीदगी बढ़ गई। हमेशा से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया यही बात कहता है, यही दोहराता है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। तो ये एक उनके अंदर एक खौफ की सी कैफियत होती है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान एस्केलेशन इतनी ना हो कि कोई गैर मामूली वाकया हो जाए, कोई तसादम हो जाए, कोई और बटन ही न दब जाए कि जिनके खामियाजा इस पूरे रीजन को, पूरे खित्ते को भुगतना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो पाकिस्तान ने इस एटमी ताकत के हसूल के जरिए पैदा किया। एक तो खुद एतमादी पैदा हुई इसके लोगों के अंदर और दूसरा ये हुआ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी लोग इस पाकिस्तान और भारत की इस कश्मकश को, इस कशीदगी को, इस तवील अरसे से चले आने वाली मुखासमत को अब हमेशा उस पे वो एक खतरे की घंटियां उनके यहाँ बजती हैं और वो मुतवज्जा होते हैं और वो फौरन हरकत में आते हैं और इस कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हालिया जो जंग है इसमें भी ये हकीकत सामने आई।
इस अंदाज से देख रही थी कि वो एटमी ताकतें अपने सामने आ गई हैं और बाकायदा एक रिवायती असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है और कहीं अदम तवाज़ुन और ढोल नजर आ जाता है फरीकैन की ताकत का, तो फिर उसके नतीजे में कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। तो आज भी हमने देखा जब कि इस माहौल में पाकिस्तान के लोग पुराज़्म थे, पुरएतमाद थे। ये एटमी ताकत, एक एटमी ताकत होने का, जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत होने का एक फख्र था, एक इम्तियाज था, एक इत्तेफाक था कि जो पाकिस्तानियों के अंदर हमने इस जंग में भी देखा। जी बार साहब, मैं जिस तरह आपने पूरी तफसील के साथ योम तकबीर के हवाले से और आज के दिन के हवाले से आपने बात की कि ये कहाँ से शुरू किया गया, इसकी एटम बम की तैयारी और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कहाँ से काम का आगाज़ किया, किन किन मराइल से गुजरा, और फिर जब एटमी धमाके पाकिस्तान करने जा रहा था तो उसको दुनिया के किस तरफ से किस तरह का प्रेशर आया, और वो जो लाबी है पाकिस्तान के खिलाफ अंदर भी और बाहर किस तरह मुतारक हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का डट कर मुकाबला किया दुनिया का और अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा और उसने एटमी धमाके किए। और इन धमाकों की वजह से आज का हम यूम तकबीर मनाते हैं, और इस यूम तकबीर की निस्बत से ही पाकिस्तान आज का उसका दफा अगर नाकाबिल तस्खीर हुआ तो इस एटमी धमाकों की वजह से और पूरी दुनिया के सामने पे आया। और जिस तरह बार साहब आपने जिक्र किया पाक भारत जंग का, जो हालिया कुछ ही दिनों में देखने को मिली, और जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जब जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अगर एटमी क़ुव्वत न होता तो शायद ताकत का तवाज़ुन बरकरार न रहता और पाकिस्तान की वो हैसियत न होती जो आज है। तो मैं इस दिन की वजह से जब एटमी क़ुव्वत बना तो आप क्या समझते हैं कि एटमी क़ुव्वत एक तो ताकत का तवाज़ुन इस इलाके में बरकरार रहा, और दूसरा ये कि हम एटमी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दफा के साथ साथ बहुत सारी माशती और माशी तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान के लिए ये एक मिसाल थी कि वो, मैंने आपसे जिक्र किया कि किस कसमपुरसी के माहौल में पाकिस्तान का आगाज हुआ, कि असासे उसके नहीं दिए गए, दबाए गए, और बहुत ही एक नौजायदा मुमलिकत थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। सनतें जो है वो दूसरी तरफ रह गई, जो टैलेंट था, जो काम करने वाले लोग थे एक सिस्टम के अंदर, यानी ब्यूरोक्रेसी थी, वो उधर रह गई। और यानी मादी लिहाज से भी फौजी का जो सामान वो भी उधर रह गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक अज़्म किया कि अपनी बका के लिए उसने इस रास्ते पर चलना है, और ये इसकी जो दूरंदेश क़यादत थी उसने देख लिया और ये अज़्म किया कि हमने पाकिस्तान को एक ऐसी ताकत बनाना है कि जिससे इसका कम अज कम जो दिफा है वो हो सके, और एक डेटरेंस के तौर पे जो इसकी सलाहियत है उसको बरकरार रखा जाए। एटम बम के जरिए, एटमी ताकत के जरिए कम अज कम जो दिफा है उसको बहाल बरकरार रखा जाए, और ताकि इसके जो बाकी वसाइल हैं वो इसके अवाम पे सरफ हो, इसकी तरक्की पर सरफ हो। और वसाइल का, क्योंकि कन्वेंशनल जो एक सिस्टम है या जंग है उसमें हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते थे कि उनकी फौजी अददी लिहाज से भी, वसाइल के लिहाज से भी, तो हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि हम कम अज कम डेटरेंस की बुनियाद पर फैसला करें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन फैसला यही था जो पाकिस्तान की रियासत ने किया कि एक एटमी ताकत के का हसूल, और उसके नतीजे में फिर वो अपनी उस दिफा के उस यानी बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जो दिफा हमने करना था कि एक सुई के मुकाबले में सुई, कांटे के मुकाबले में कांटा और गोली के मुकाबले में गोली वाला, हम उससे बेनियाज हो गए कि हमने ये रेड लाइन मुकर्रर कर दी कि अगर हमारी इक़्तिदार आला को, हमारी खुद मुख्तारी को, हमारी इंटेग्रिटी को, हमारी इलाकाई सालमियत को अगर खतरा होगा तो इसके बाद फिर हम इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेड लाइन जब मुकर्रर हो गई तो फिर हम बहुत से जो हमारे जो झंझट हैं, जो बहुत से मसाइल हैं, उनसे आज़ाद हो गए। तो ये अगर आज भी हम दोहराएं, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम मिलजुल कर, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत भी बन सकता है। आज हम IMF के रहमो करम पर हैं, तो इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह ये नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास कुछ कुदरत का दिया हुआ कुछ नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। हमारे पास अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हैं, टैलेंट भी दिया है,
सिर्फ उस अज़्म की कमी है जो अज़्म हमने यहाँ जाहिर किया था, उस जोहद मुसलसल की कमी है कि जो हमने एटमी ताकत के हसूल के लिए किया था। शायद कुछ वो हमारी, चूंकि हम ये समझते थे कि हमारी बका का रास्ता ही यही है कि हम अपने दिफा को मजबूत करें, तो इसलिए हमने वो रास्ता जिसका मुतय्यन किया था, हमने वो रास्ता अबूर किया, वो रास्ता मुकम्मल किया, मंजिल पर पहुंच गए दिफा के लिहाज से। और लेकिन माशी लिहाज से हम अभी कुछ पीछे हैं। लेकिन अगर यही हम दोहराएं तो पाकिस्तान का पोटेंशियल, टैलेंट और इसके वसाइल मिल जाए तो पाकिस्तान इस खिते की एक मुमताज और नुमाया मुआशी ताकत के तौर पर उभर सकता है। और हमें रोल मॉडल बाहर से लाने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक मॉडल मौजूद है, अपना ही मॉडल मौजूद है कि हमने कांटे से कहूटा का सफर तय किया। सिर्फ चंद दहाइयों में इंतहाई कसम पुरसी के आलम में हमने सफर शुरू किया, फैसला शुरू किया, तिनका तिनका जोड़ा, और हम दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली जी बार साहब, जिस तरह आपने टैलेंट का जिक्र किया, जिस तरह आपने टैलेंट का जिक्र किया, पाकिस्तानी कौम के अंदर, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस तरह भारत की तरफ से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग की गई कि भारत ये एटमी कुव्वत जो है एक गैर जिम्मेदार मुल्क के हाथ चढ़ गई है, ये पूरी दुनिया को खतरा है, गैर जिम्मेदार मुल्क है, इस तरह की बातें पूरी दुनिया के अंदर एक भारत की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है किया गया। लेकिन हालिया पाक भारत जंग के दौरान और जंग के बाद जो इमेज गया पाकिस्तान के पाकिस्तान का, खासकर पाकिस्तानी फौज का, और जिस तरह आपने देखा कि जो तैयारे गिरे, राफेल तैयारा जो गिरा और उसके ऊपर उस कंपनी के ऊपर बड़ी तनकीद शुरू हो गई, और जिसके ऊपर उसने वजाती बयान दिया जी कि हमारे तैयारे में कोई कमी नहीं है बल्कि चलाने वालों की कमी है। तो ये भी खुल के सामने आ गया कि पाकिस्तान के पास एक माहिर और एक जिम्मेदार और एक अच्छे लोग और पाक फौज के अंदर और पाक फज़ैया में मौजूद हैं जो न सिर्फ जादू का इस्तेमाल को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं बल्कि एटमी कुव्वत को भी वो संभाल के और जिम्मेदाराना तौर पे उसको बर वक्त इस्तेमाल करना और उसको महफूज रखना भी वो अच्छी तरह जानते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इमेज हमारा अच्छा बिल्ड नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि इस जंग ने, ये जो मोदी की हिमाकत से ये जो जंग शुरू हुई, इसने बहुत सी हकीकतें दुनिया पे आश्कारा की और खुद पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो भी सामने आ गया, वो सलाहियत सामने आ गई। ये जो आप एक शोबे की बात करते हैं कि हमारा टैलेंट है, हकीकत में ये उसी मजमूई हमारे जो कौमी टैलेंट है उसकी एक झलक है कि किस भी शोबे में पाकिस्तान के लोग अगर आगे जाना चाहें, महारत हासिल करना चाहें, तो फिर वो दुनिया में अपना लोहा मनवाते रहे हैं और मनवाते रहेंगे और मनवा रहे हैं दुनिया में। तो ये जो इस जंग में हमारा एक पिन्हा पोटेंशियल सामने आया, इसने भी दुनिया को बहुत सी हकायक से आगाह किया कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की फौजी क़यादत, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो फज़ाइया है, हाँ यानी तमाम जो अफवाज हैं, उनके अंदर एक इतनी सलाहियत है कि वो भारत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं कि बल्कि भारत को वो टेक्नोलॉजी के मैदान में और उसके इस्तेमाल के मैदान में उसको शिकस्त भी दे सकते हैं। तो बहुत इतराता था भारत, बहुत एक विश जाहिर की थी, एक आह भर के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर राफेल होते तो ये ना होता और वो ना होता, वो अभिनंदन के एपिसोड में। लेकिन बिलाखिर राफेल भी मिल गए और राफेल को दुनिया ने फिर फेल होते हुए भी देखा और पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने फिर उस राफेल को राख के ढेर में भी बदल कर रख दिया और ये दुनिया पर पाकिस्तान की एक सलाहियत एक बार फिर आश्कारा हुई। जी दुनिया को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान। जी बिल्कुल। जी बार साहब, मैं आपके आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा और बहरहाल ये बड़ा अहम भी है और आपके हवाले से खासकर जो बैनुल अक़वामी मीडिया को भी देखते हैं, बार साहब जिस तरह इससे पहले भी पाक भारत जंगें हुई और भारत की तरफ से भी दावे किए गए कि जंग हमने जीत ली, पाकिस्तान की तरफ से दावे किए गए पाकिस्तान की तरफ से अलग और कि जंग हमने जीती, मतलब दोनों तरफ से बाद जंगों में दावे हुए। लेकिन इस जंग के हवाले से बड़ा ही यानी पूरी दुनिया इसको मान रही है और खुद भारत के अंदर आप देखें तो भारतीय मीडिया, भारत की अपोजिशन, वहाँ की सियासी क़यादत
वो खुल्लम खुल्ला इस बात का इज़हार कर रही है और वो मोदी के ऊपर तनकीद कर रही है कि उन्होंने बल्कि एक सियासी रहनुमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी की हमाकत ने हमें मरवा दिया। तो इस तरह की ये पहली दफा खुल के जो है दुनिया में भी और भारत में भी इस बात को तस्लीम किया जा रहा कि पाकिस्तान बाजी ले गया। जी बिल्कुल, असल में बुनियादी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी ने बिना वजह पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और सियासी मकासद के हसूल के लिए कोशिश की। यानी जो पहलगाम का वाकया हुआ उससे कई गुना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया उससे चंद ही माह कबल जो है वो यहाँ हुआ था जाफर एक्सप्रेस का। जी जी। लेकिन पाकिस्तान ने उसको एस्केलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और नरेंद्र मोदी ने एक मशकूक किस्म के वाक़े को, जिसकी अभी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं थी, जिसमें अभी डोर का सिरा मिलना बाकी था, तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पे एक अपनी धाक बिठाने के लिए, अपनी शख्सी और अपनी मुल्की और अपने नजरिए की धाक बिठाने के लिए उसने पाकिस्तान पर हमला किया था। और साफ नजर आ रहा था दुनिया को कि ये नरेंद्र मोदी सारे किरदार खुद अदा करना चाहता है। वो मुद्दई भी खुद बनना चाहता है, वकील भी खुद बनना चाहता है, मुंसिफ भी खुद बनना चाहता है। तो ये दुनिया इतनी भी गई गुजरी नहीं है। गो के हम ये समझते हैं कि अभी इंसाफ के वो पैमाने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुरव्विज नहीं है जो होने चाहिए थे। हम गजा में देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी भी कोई क़यामत नहीं पड़ी कि नरेंद्र मोदी अपनी फिक्र और अपना फलसफे से दुनिया को हाँकता चला जाए और वो दुनिया को जो एक पट्टी पढ़ाएगा तो दुनिया उस पर यकीन कर लेगी, उस पर मिनवान यकीन कर लेगी और आमन्ना व सदकना कहेगी। तो ये यहाँ से नरेंद्र मोदी से ताबीर की एक ऐसी गलती हुई कि उसका काम जो है वो दलदल पर आ गया और दुनिया ने उसकी पहलगाम में भी उसकी कहानी का जो सौदा है वो खरीदने से इनकार किया और जंग में भी फिर नरेंद्र मोदी को वो हिमायत बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं मिल सकी कि जिसकी उसने तवक्को लगाई थी। और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से एक जोरदार और मुंहतोड़ किस्म का जवाब मिला कदम कदम पर नरेंद्र मोदी को, तो उसका नतीजा फिर यही था कि जो उनके पैरों तले से जो कालीन उन्होंने हुआ था, एक ब्रांड मोदी का और चमकते तमकते इंडिया का, वो कालीन खिसकना शुरू हो गया उनके पैरों तले से। उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिर गया, अपोजिशन को एक मौका मिल गया ताबड़तोड़ हमले करने का और वो 56 इंच की छाती और लाल आंख, वो फिर पहले तो चीन के मुकाबले में ही ताने उनको मिलते थे कि ये 56 इंच की छाती और ये लाल आंख चीन को क्यों नहीं दिखाते आप। तो फिर अब पाकिस्तान के मामले में भी फ्लॉप हो गया ये सारा ड्रामा और यूं नरेंद्र मोदी ने जो अपना एक शख्सियत का एक मर्द आहन का एक जो मुजस्मा खड़ा किया था, एक कुतुब मीनार बनाया हुआ था, वो किरची किरची हो गया खुद उनके अपने हाथों से, उनकी अपनी हमाकतों से। और बहुत सी नई हकीकतें, तस्वीराती हकीकतें और डायनामिक्स जो है वो इस खिते में सामने आई। सबसे बड़ी जो हकीकत है कि जिस पर भारत के तजिया निगार मुत्तफिक नजर आते हैं वो ये है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जो पोटेंशियल है वो खुलकर सामने आया। जो उसके अंदर एक ताकत है पिन्हा, वो सामने आ गई और अंदाजा हो गया कि मुस्तकबिल में ये दोस्ती किस अंदाज से आगे बढ़ेगी और किसी भी चैलेंज में ये दोस्ती कौन सा रुख इख्तियार करेगी। तो ये नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से हुआ कि जिस तरह वाजपेयी जी की मेहरबानी से पाकिस्तान को धमाके करके एलानिया एटमी ताकत बनने का मौका मिला था, इसी तरह नरेंद्र मोदी की हिमाकत से बहुत सी इस खित्ते में जो नई तस्वीराती डायनामिक्स हैं, हरकियात हैं, उनको समझने में और उनका अंदाजा करने में दुनिया को मदद मिली है। बहुत शुक्रिया बाहर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी मुफीद मालूमात से हमारे सामीन को नवाजा। सामीन कराम और सोशल मीडिया के नाजरीन से हम यहाँ से चाहेंगे इजाज़त, और लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो जारी रहेगा रेडियो के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और आज का प्रोग्राम हमारा जो यूम तकबीर के हवाले से ख़ास प्रोग्राम था जिसमें आदमी क़ुव्वत जो पाकिस्तान बना और इसका जो सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर आदमी क़ुव्वत बनने तक, और आज जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की दुनिया का, पाकिस्तान का जो दुनिया में नाम है और जो पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर है, इसी वजह से है कि वो एक एटमी क़ुव्वत है। इस सारी कहानी को इस प्रोग्राम में बयान किया गया और चीदा चीदा वाक़ात और इसका जो मुस्तकबिल का खाका है वो भी आपने सुना। और इसके साथ हम सोशल मीडिया के नाज़रीन से चाहेंगे इजाज़त, लेकिन हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद रेडियो के फ्रीक्वेंसी में हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा।